Morning students, I am Swarnjit Kaur, maths teacher from Harvard Convent School, Bagapurana. For class 12th students, as you all know that we are doing the chapter 4, that is the determinant. This chapter is also very important from the examination point of view. We have already discussed in this chapter how to expand the determinant, then we have done how to find out the area of triangle, then we have done how to find the cofactors and the minors. Today we will discuss about the topic Cramer rule. Cramer rule is used for the find out the value of the variables of the linear equation by using the determinants. That is the very easiest method. In this method we have to just expand the determinants. That is very easy. We have to just find out the determinants. We have given the three linear equations. Basically in our syllabus we have always the three linear equations, okay, in three variables, but in your book there are so many questions of the two variables. We have done this in the 10th class also, but from the examination point of view three linear equations are the important, so that's why I am discussing about the three linear equation in three variables. So when the linear equation means when your degree is 1, okay, a1x b1y plus c1z is equals to d1, a2x plus b2y plus c2z is equals to d2, a3x plus b3y plus c3z is equals to d3. And I am saying that in this method we will just find out the determinants. So first determinant, what will be that determinant? X, डी. आप किस तरीके से करोगे, सिर्फ और सिर्फ आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. सबसे पहले आप क्या लिख लो, एक्स के कोफिशिएंट्स जो हैं, दैट इज a1 a2 a3, राइट दिस इनटू द कॉलम 1. देन कोफिशिएंट्स ऑफ द y, write this into the column 2. Then coefficients of z, that is c1 c2 c3, write this into the column number 3. Then expand this, so you will got the value of the d. Now next we will find the value of the d1. What will be your d1? d1 और d में आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस होएगा, a1 a2 a3, that is the coefficients of x. Change these with the d1 d2 d3. किसके साथ आप इनको रिप्लेस कर दो, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ. d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इज सेम. मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड डिटर्मिनेंट में क्या चेंज किया है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा x का कोफिशिएंट है उसको किसके साथ रिप्लेस कर दिया, विद द कांस्टेंट. सो सॉल्व दिस, वी विल गॉट द d1 वैल्यू. देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन d2 एंड d? क्या होएगा, सेम. अगर हम इसमें हमने क्या किया है, x वाले कोफिशिएंट को रिप्लेस किया है विद द कांस्टेंट, मींस ऑब्वियसली d2 में हम क्या कर देंगे, y वाले कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर देंगे विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट, मींस a1 a2 a3 इज द सेम. देन रिप्लेस दिस with the d1 d2 d3 and c1 c2 c3 will be the same. And now that is obviously what will be the change into the d3? Obviously we will change the last column with the constant coefficients. So from this, जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती है, हमारा मोटिव क्या होता है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स. मीन्स इसमें भी हम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, एंड आवर वेरिएबल्स आर x y and z. सो दैट मीन्स वट विल बी द वैल्यू ऑफ द x. ऑब्वियसली बच्चे इसमें हमने x को रिप्लेस किया है, दैट मीन्स कि ये दोनों किसकी वैल्यू देंगे, x की. सो d1 ओवर d इज़ द वैल्यू ऑफ द x. ठीक है, इन दोनों का जो भी आपका आंसर आएगा डिवाइड कर दो, यू विल गॉट द वैल्यू ऑफ द x. देन y इज़ d2 ओवर d एंड z इज़ d3 ओवर d. अब बच्चे इनमें कोई रिलेशन भी हो सकता है, मीन्स अगर आपका d ज़ीरो हो गया तो क्या होएगा, अगर नीचे ज़ीरो आ गया फिर तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं ना कि वैल्यूज़ है, सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है. ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशन का हो भी सकता है कि यूनिक सोल्यूशन हो सकता है कि सोल्यूशन ना हो सकता है कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो. ठीक है, तो सेम एज इट इज़ जैसे हम 10th क्लास में करते थे लीनियर पेयर ऑफ द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, मीन्स यहाँ से वैल्यूज़ कैसे पता चलेगी, दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द वैल्यूज़ ऑफ द डीज. ठीक है,
अब अगर आपकी d की वैल्यू 0 आ गई और d1 d2 d3 इनमें से कोई एक नॉन ज़ीरो हुआ, दैट मीन्स नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मीन्स इनकन्सिस्टेंट। अगर किसी का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता दैट इज़ कॉल्ड द इनकन्सिस्टेंट। दैट मीन्स कि अगर यूनिक सोल्यूशन चाहिए, ऑब्वियसली जो आपका डिनोमिनेटर में है दैट मस्ट नॉट बी ज़ीरो। अगर आपका d ही ज़ीरो आ गया तो सोल्यूशन कैसे एग्जिस्ट कर पाएगा? सो इफ़ योर d इज़ नॉन ज़ीरो देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। एंड इफ़ योर d ज़ीरो एंड ऑल di इज़ ज़ीरो, तो उसके लिए बच्चे हम क्या बोल सकते हैं कि इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन भी हो सकते हैं और हो सकता है कि कोई सोल्यूशन ना भी हो। इन दिस केस दैट इज़ ऑल्सो इनकन्सिस्टेंट। ठीक है, ओनली कंसिस्टेंट इज इन दिस केस। मीन्स सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? व्हेन योर d इज़ नॉन ज़ीरो। ठीक है, d1 d2 वो ज़ीरो हो सकते हैं बट d मस्ट बी नॉन ज़ीरो। ठीक है, अब इस सारे मेथड को हम एक क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे और आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, फॉर दिस मैंने क्या किया है, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 ले लिया है। ठीक है, दैट इज़ x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 7 एंड 4x प्लस z इज इक्वल्स टू 6। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है कि जो जितने बाकी क्वेश्चन है ना उन तीनों में तीनों वेरिएबल्स हैं लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें दो दो लिखे थे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इसको करने के लिए, इसीलिए ये मैंने सॉल्व खुद कर दिया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, मैंने आपको क्या बोला है कि जब भी आपने एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो क्या करोगे आप, d1 d2 d3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करोगे। ठीक है, और d क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ x, कोफिशिएंट्स ऑफ y एंड कोफिशिएंट्स ऑफ z। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट, दैट इज़ 1, इसमें है ही नहीं 0, इसमें 4। कोफिशिएंट ऑफ y 3, सेकेंड इक्वेशन में है ही नहीं 1, सॉरी सेकेंड में है y के साथ दैट मीन्स 1, थर्ड में है ही नहीं 0, लास्ट में फर्स्ट इक्वेशन में z वाला कोफिशिएंट है ही नहीं दैट इज़ 0, सेकेंड में 3 एंड देन द लास्ट z के साथ कुछ नहीं है दैट मीन्स 1 है, सो दैट इज़ 1। सो एक्सपैंड दिस बाय 1, r1 के साथ एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या बन गया 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू ये रो कॉलम छोड़ दो 0 माइनस ऑफ 12, so you will got the 37. So same as it is find out the d1। मैंने आपको क्या बोला था, d और d1 में क्या चेंज है, जस्ट रिप्लेस द कोफिशिएंट्स ऑफ x विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब इसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट्स कौन से हैं, 4 7 6, so replace this with this, so expand this you will also got the 37। again d3 में क्या करोगे, इसको रिप्लेस कर दोगे विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स एंड सॉल्व दिस अगेन यू विल गॉट द 37। एंड d3 में क्या करोगे, रिप्लेस द कोफिशिएंट्स ऑफ z विद द कांस्टेंट, यू विल गॉट द आंसर 74। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, d1 ओवर d दैट इज 37 ओवर 37 that is 1, then y is equals to d2 over d that is also 37 over 37 1, then last is d3 over d that is 74 over 37 that is 2। सो अब हमारे पास x y z की वैल्यूज़ आ गई हैं बच्चे। अगर आपने चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, ये तीनों वैल्यूज़ किसी एक इक्वेशन